आगे हम लोग एक बार देखते हैं कि क्या 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 है, देखना एक बार। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, in exercise 14E, last day I have explained you that you have to use this formula in this exercise, and this formula is used to determine the term where n denotes the position of the term, A means the first term, of the GP series, R means the common multiple or the common ratio. We can say common ratio or common multiple, anything. Okay, now see. Now एक बार ध्यान से भी नोट करना सबको ही. Suppose you have two numbers, let's take A and B. And suppose in between these two numbers, you have to insert an arithmetic mean. I repeat, ये दो numbers के बीच में अगर मान लो हम लोग को arithmetic mean insert करना होगा, what does capital A denotes? Capital A denotes arithmetic mean between the two numbers, that is A and B. Let's take for example, you have two numbers, that is 2 and 6. Now 2 and 6 के बीच में अगर मान लो हम लोग को एक arithmetic mean insert करना हो, 2 और 6 के बीच में अगर हम लोग को एक arithmetic mean insert करना हो, so can you tell me what is that arithmetic mean between 2 and 6? Yes, anyone who can answer? Anyone? 4. Now 4 is the arithmetic mean between 2 and 6 because 4 minus 2 का वैल्यू और 6 minus 4 का जो रिजल्ट है वो दोनों क्या है, सेम है. अरिथमेटिक मीन मीन्स अगर ये मान लो दो नंबर्स के बीच में अगर मैं एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहा हूं, इसका मतलब वो नंबर इंसर्ट करने के बाद वो तीनों टर्म्स जो है एपी में होना चाहिए. आई रिपीट, वो तीनों टर्म्स एपी में होना चाहिए. सो अगर ये तीनों टर्म्स एपी में है, इसका मतलब 4 minus 2 का वैल्यू और 6 minus 4 का जो रिजल्ट है वो दोनों क्या होगा, सेम होगा. Exactly same way, if I am inserting an arithmetic mean between two numbers and if I am denoting that arithmetic mean with capital A, I can say that this capital A should be such that capital A minus small a should be same as B minus capital A. Is this clear? Capital A minus small a should be same as B minus capital A. As a result, 2A equals to A plus B. And what is capital A? Capital A means arithmetic mean between two numbers. It is A plus B divided by 2. तो अगर मान लो मुझे दो नंबर्स के बीच में एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, सो इट इज नथिंग बट सम ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय 2. जो दो नंबर्स के बीच का हमको अरिथमेटिक मीन निकालना है, वो नंबर कैसे निकलेगा अरिथमेटिक मीन? दोनों नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2. In other way we can say that it is nothing but the average of the two numbers. A plus B by 2 is what? The average of the two numbers जिसका हम arithmetic mean निकालना. One more example, suppose you have got 3 and suppose 9. 3 और 9 के बीच का arithmetic mean क्या होगा? That is, we know that it is 6. But how 6? You know that 9 plus 3, देखो एक बार, 9 plus 3 12. 12 by 2 is how much? 6. So 6 is the arithmetic mean between the two numbers. Clear? Now this is one concept you require. You require one more concept in this exercise, and that is geometric mean ka concept. So everyone copy down till here, then I'll explain you what is geometric mean. Hurry up. And I hope you all know how to find out common ratio. Common ratio is term divided by the previous term. These things are very clear to you all. Start karte hue copy karna.
Next. Now suppose geometric mean. Now let's say कि अगर मान लो दो नंबर्स के बीच में एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना होगा तो एक नंबर क्या होगा, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो. बट एक अगर मान लो मुझे दो नंबर्स के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, सो लेट अस सी हाउ टू डू दिस पार्ट. नाउ सपोज यू हैव गॉट टू नंबर्स a and b, and suppose you have to insert one geometric mean, single geometric mean between two numbers. What does capital G denotes? Geometric mean between the two numbers. अगर ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पहले ध्यान से यहां पे देखते हैं. सपोज मान लो 2 है और 8 है, तो 2 और 8 के बीच का अगर मैं एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इफ आई आस्क यू, सो कैन यू आंसर मी व्हाट इज दैट geometric mean between 2 and 8? Yes, 4. Now why you are saying 4 is the geometric mean between 2 and 8? Because 4 divided by 2 and 8 divided by 4 is equals to what? Same, that is 2, and 2 represents what? Common ratio. Now you know that insert करने के बाद जो numbers insert करने के बाद 2 और 8 के बीच में geometric mean insert करने के बाद ये तीनों numbers किस में होना चाहिए? Geometric progression में होना चाहिए, GP में होना चाहिए. Exactly same way, अगर मान लो मुझे A और B के बीच में G insert करना है तो G by small a should be equals to B by capital G. Cross multiply, G square equals to AB. So what is G? It is square root of AB. So अगर मान लो मुझे दो numbers के बीच में का geometric mean निकालना है, so it is product of square root of the two numbers. देखो एक बार 4 क्या है? 4 is product of the square root of the two numbers. देखो 2 8 जा 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. कॉपी डाउन फर्स्ट. Now, after this formula, let me explain you question number 5, and then you all will try question number 7. Okay, so let's do question number 5. Suppose you have got two numbers, that is 16 and 256. 16 और 256 के बीच में हम लोग को 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करना है. कितना? एक नहीं, कितना? 3. So I am giving 3 gaps in between these two numbers. Okay, मैं इन दो numbers के बीच में मैं यहाँ पे 3 gaps दे रहा हूँ. देखो, now just tell me one thing everyone. Here can I say that the first term is 16? Yes. पहला term is series sequence का क्या है? 16 है. Can I say if the first term is 16, now can you tell me if there are 3 gaps in between 16 and 256, this 256 is which term of the sequence? GPC series? I mean geometric progression. Can you tell me 256 कौन सा term है? Yes, yeah, 5th term. Why? Because 1 2 3 4 और ये 5th टर्म हो गया, मतलब 3 है तो 256 का पोजीशन क्या हो जाएगा? 5. 5th टर्म. अगर बीच में अगर मान लो मुझे 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना होता तो कितना होता पोजीशन 256 का? 6 हो जाता. कैसे? 3 देखो 1 2 3 4 5, 3 है तो 5 होगा, 4 है तो 6 होगा. सिंपल. नाउ वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट इज द कॉमन मल्टीपल r. So let r be the common ratio. Now we know that the 5th term is 256. That is, what is the formula to find the term of the GP? It is A, that is 16 into R, which is not known to us, to the power n minus 1. So R to the power 4 is 256 by 16. R to the power 4 is 16.
We can write 16 as plus minus 2 whole to the power 4. Note down everyone. Plus 2 whole to the power 4 is also 16 and minus 2 whole to the power 4 is also 16. As power is same, equalize the base. So R is plus minus 2. You have to take plus 2 as well as minus 2. So what are the three numbers? Therefore the required three numbers are let us put R equals to plus 2 once. So what is plus 2 into 60? 32. What is 32 into 2? 64. What is 64 into 2? 128. What is 128 into 2? 256. मतलब answer correct है. Or if I take the value of R equals to minus 2, so what is minus 2 into 60? It is minus 32. What is minus 32 into minus 2? It is plus 64. And what is 64 into minus 2? It is minus 128. What is minus 128 into minus 2? It is plus 256. So these are the two set of answers. और दोनों आंसर लिखना चाहिए. बुक में अलग बात है कि एक आंसर लिखा है. I don't know कि एक आंसर लिखा है कि दो आंसर. But you have to write down both the answers. Make sure everyone. Yes, they have written both the answers. एक लिखा है. But you have to write down. You should write down both the answers. Okay. Is this clear? Both the answers should be written. Everyone copy down. I think everyone has understood. Copy down. एक कॉपी करके एक बार पहले नंबर 6 करो सबको. Do number 6 first. 6 के बाद 7. 7 के बाद 9. 11. These are important sums for exam. 13 and 14. इस एक्सरसाइज से अगर आएगा तो ये सब सम्स ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. So have you done number 6, everyone? सबको कर लिया तो नंबर 6 R का क्या वैल्यू है नंबर 6 में? What is the value of R? Plus minus 3 or just 3? Yeah, not plus minus 3, I think. Okay. See, because you are inserting 1/3 और 243 के बीच में हम लोग कितने नंबर्स इंसर्ट कर रहे हैं? 6 नंबर्स. इसका मतलब यहाँ पे a का वैल्यू 1/3 है और 243 कौन सा टर्म? As we are inserting how many numbers? 5 numbers.
So 243 seventh term, दो ज्यादा हो जाएगा ये. Let R be the common ratio. तो टर्म का फॉर्मूला क्या है? A R to the power n minus 1. 243 is equals to what? 243 is 3 to the power. How much? 3 to the power 5. Yes, it is plus minus. You'll get two answers. Because power even है. Plus 3 का whole to the power 6 भी ये इतना आएगा. और minus 3 whole to the power 6 is also the same thing. So what is the value of R? It is plus minus 3, not just 3. वो अलग बात है कि बुक में एक ही आंसर दिया हुआ है. अब एक बार 3 मल्टीप्लाई करूँ तो 1, 3, 9, 27, 81. और minus 1, 3, minus 9, 27, minus 81. These are the two set of answers. Question number 7 now. Question number 7. सेवन हो गई. ठीक, बाकी लोग ट्राई करो, आराम से ट्राई करो. कोई किसी से compete करने का यस थोड़ा अगर वो होना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई और अगर कर ले और बाकी लोग अगर नहीं किया तो मतलब डिमोटिवेट होना, ऐसा कुछ नहीं है. आराम से करो, रिलैक्स एंड डू. दिमाग ज्यादा चलना चाहिए, हाथ नहीं, दिमाग तेज चलना चाहिए. सो एवरीवन ट्राई नंबर 7. और जिसको भी डाउट होगा बोलना मुझे. प्लीज आप जिस किसी का माइक म्यूट किया हुआ है, म्यूटेड डिवाइस. ना जिसको समझ में नहीं आ रहा एक बार मैं बताया था उनके लिए नंबर 7. सी एवरीवन इज नोट डाउन. टू नंबर्स जिसका एक बार अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है और वो दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है. सो फाइंड द नंबर्स. लेट A and B be the two numbers. Clear? Okay, let the two numbers be A and B. अब ये दो नंबर्स के बीच का हम लोग को अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है और ज्योमेट्रिक मीन भी दिया. ठीक है, देखो लिखा हुआ है. व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स? इट इज 17. मतलब A और B के बीच का अरिथमेटिक मीन 17 है. सो कैन आई से दैट A plus B by 2 is equal to 17. जस्ट नोट डाउन एवरीवन. A और B दो नंबर्स है और उसके बीच का अरिथमेटिक मीन 17 है. सो कैन आई से दैट 17 is A plus B by 2. Check the formula. So what is A plus B? It is 34. Mark it as 1. उसके बाद दोनों नंबर्स के बीच का ज्योमेट्रिक मीन क्या है? 8 है. मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये दोनों नंबर्स है और इसके बीच का ज्योमेट्रिक मीन 8 है. So can I say that this 8 is equal to what? Square root of AB. Square both sides, root will be eliminated. Now let us solve both the equations. Determine the values of A and B. ए बी का अगर वैल्यू 64 है तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 64 बाई ए.
Bring all the terms on the left hand side. Okay, so either the value of A is 32 or the value of A is 2. These are the two values of A. Now we will put the value of A equals to 32 once. If I put the value of A equals to 32, what is the value of B? It is 2. And when A equals to 2, the value of B is how much? 32. Therefore, the two numbers are 32 and 32 and 2 or 2 and 32. You have to write down both the answers this way. Okay, 32 and 2 or 2 and 32 this way. Now, you have the next sum, that is number 9. Okay, try once number 9. Now, anyone who has done number 9, can we clear number 9? सबसे हो गया? कोई है जिसको डाउट है? If someone is doing, you complete. You just let me know one so that I can wait. Otherwise, अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मुझे बोल दो, मैं बोर्ड पे बता देता हूँ. कोई है ऐसा जिससे नंबर 9 नहीं हुआ? बहुत सिंपल है, तुमको सिंपल बोल रहा हूँ, डजंट मीन अगर नहीं हुआ तो तुम नहीं पूछोगे. फिफ्थ टर्म का वैल्यू पी से डिनोट किया जा रहा है. उसके बाद नेक्स्ट एथ टर्म का वैल्यू को क्यू से एंड 11th टर्म का वैल्यू को एस से. तो बस पी क्यू एस निकाल देना ए और आर के टर्म्स में. एक बार लेफ्ट हैंड साइड में क्यू पुट कर देना और एक बार राइट हैंड साइड में पी और एस लेके पुट कर देना. वैल्यूज इक्वल आ गया मतलब ट्रू हो गया. इज दिस क्लियर और शैल आई एक्सप्लेन एनीवन? If anyone needs, I can explain on the board. No one. Okay. So you can try number 11 now. 11 number.
क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करना। नाउ 11 बहुत मुझसे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो जिससे हो रहा है यू कैन ट्राई कंटिन्यू, मत देखना बोर्ड पे मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन जिससे हो ही नहीं रहा, स्टार्टिंग ही एक लाइन भी नहीं हो पा रहा है, तो एक बार नंबर 11 देख लो बोर्ड पे। सी यू हैव अ जीपी, उस जीपी का ना फर्स्ट टर्म पता है ना कॉमन रेशियो पता है। सो लेट कैपिटल आर एंड कैपिटल ए एंड कैपिटल आर बी द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो। नाउ सी मैंने कैपिटल आर से क्यों डिनोट किया यहाँ पे कॉमन रेशियो को, बिकॉज यहाँ पे आर ऑलरेडी कुछ और चीज को डिनोट कर रहा है, देखो किसी और चीज को डिनोट कर रहा है, सी आर एच टर्म, सो आई कैन नॉट यूज कॉमन रेशियो, I cannot denote common ratio with small r. So that's why I'm taking capital R. Next. See, we know that it's written pH term is x. pH term का value क्या है? x है. So can I say that, note down, can I say that a into capital R to the power p minus 1 is equals to x? Mark it as equation number 1. Is this clear everyone? फॉर्मूला क्या होता है टर्म का? a r to the power n minus 1. उसके बाद qx टर्म का वैल्यू क्या है? y है. So we can say that a into r to the power q minus 1 equals to y. Mark it as 2. And rx टर्म का वैल्यू z है. a into r to the power r minus 1 equals to z. Mark it as equation number 3. This is clear everyone? Now let us see the proof part. हम लोग को प्रूफ क्या करना है? हम लोग को प्रूफ करना है x to the power y, x to the power q minus r, y to the power r minus p, z to the power p minus q equals to 1 हम लोग को शो करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? Let us take left hand side here first. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग, और यहां पे जहां पे x दिख रहा है x का वैल्यू पुट कर देना। ओके, x का वैल्यू पुट कर देना, इसके पूरा पावर पे क्या है? q माइनस आर। ठीक है, y का वैल्यू पुट कर देना, और उसके बाद z का वैल्यू पुट कर देना। Okay, everyone, now see. You all know that x into y whole to the power n is x to the power n into y to the power n. I repeat, what is x into y whole to the power n? It is x to the power n into y to the power n. तो ये क्या हो जाएगा? a to the power q minus r into r to the power p minus 1 whole to the power q minus r. समझ में? x into y, see, x into y whole to the power n is x to the power n into y to the power n. Please use this bracket. If you don't give this bracket, it will be wrong. a to the power r minus p, इसके पावर पे या बिना ब्रैकेट दिए भी लिख सकते, चलिए ब्रैकेट दे दिए, होल टू द पावर r माइनस p. ओके, नाउ जब बेस सेम है और सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a टू द पावर q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q. व्हेन बेस इज सेम पावर गेट्स एडेड. यू नो दैट पावर का होल पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई. जैसे मान लो x स्क्वायर का होल क्यूब है, तो ये x टू द पावर 6 हो जाएगा, 2 3 6, वैसे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा.
तो ये हो जाएगा r टू द पावर p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आई, r टू द पावर q माइनस 1 इंटू r माइनस p, r टू द पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस q। जब यहाँ पे r कैंसिल हो गया, p कैंसिल हो गया, q भी कैंसिल हो गया, तो ये क्या जाएगा a टू द पावर 0। अब सब जगह बेस सेम है, देखो ये ना, तो पावर को ऐड कर दो। पावर को ऐड करने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर जो दो चीज का प्रोडक्ट है उसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना, सो यू गेट r टू द पावर pq माइनस pr माइनस q प्लस r, qr माइनस pq माइनस r प्लस p, rp माइनस rq माइनस p प्लस q। नाउ r टू द पावर देखो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, चेक कर लो, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। r टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, 1 into 1 will be 1, this is what we have on the right hand side। तो ये सम थोड़ा सा लंबा है, ओके। इसमें बस करना क्या है तुमको, लॉज ऑफ इंडिसेस का कंसेप्ट अप्लाई करना। तुम अगर देखो तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ लॉज ऑफ इंडिसेस लगाया। क्या लगाया, पहला लॉ x into y होल टू द पावर n क्या होते हैं, x टू द पावर n into y टू द पावर n। सेकेंड लॉ क्या अप्लाई किया, x टू द पावर m होल टू द पावर n क्या होते हैं, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तीसरा, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। यही चीज मैंने अप्लाई किया, कॉपी करते हैं। अगर कोई है जिसको समझ में नहीं आया तो बोलना। ये 11 नंबर सम है, अब मैं 13 और 14 बताऊंगा, पहले तुम लोग ट्राई करो। Is there anyone who has got doubt here? Anyone can answer? Like तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ऐसा है कि दिख नहीं रहा होगा थोड़ा, I know that, but एक बार अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। Now everyone, सम नंबर 13 में कि कोई हुआ किसी नंबर 13, आई थिंक ये सम तुम लोग क्लास 10 में भी शायद किया हुआ है ये वाला सम। एनीवन हु हैज गॉट, आई मीन कोई, ठीक है। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं, ट्राई करो आराम से। और नंबर 13 एक बार देखो पहले।
and then after this you have number 14. Shall I explain number 13, anyone? Anyone? किसी को number 30? देखना है। So see, question में क्या बोला है कि ABC are in GP, number 1. देखो एक बार. So if A comma B comma C are in GP, just read. If ABC are in GP, can I say that B divided by A is equal to C divided by B, because common ratio will be same. So we have B square equals to how much? AC. Mark it as equation number 1. उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, A to the power 1 by x, B to the power 1 by y and C to the power 1 by z are all equal. ये तीनों इक्वल है. एक बात बताओ, और हम लोग को क्या प्रूव करना है? हम लोग को प्रूव करना है, we have to prove that x, y, z are in AP. So everyone note down here, ध्यान देना. सबसे पहला चीज, अगर मान लो ABC GP में है तो क्या मैं बोल सकता हूँ B स्क्वायर इक्वल टू AC? और अगर मान लो ये तीनों क्वांटिटीज इक्वल है, जैसे मान लो मैं ये बोलता हूँ A का वैल्यू 2 है, B का वैल्यू भी 2 है, C का वैल्यू भी 2 है, मतलब तीनों इक्वल है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल्स टू 2. बट हियर ऑल दिस थ्री क्वांटिटीज आर इक्वल, बट इक्वल टू व्हाट? आई डोंट नो व्हाट इज दैट अननोन थिंग. जैसे मान लो A इक्वल टू B इक्वल टू C, ये तीनों इक्वल किसके बराबर है? 2 के बराबर है. सो लेट दैट वैल्यू बी K. तीनों क्वांटिटीज को हम लोग इक्वल टू K ले लेते हैं. ठीक है यहां तक? अब देखो हम लोग को प्रूव क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है एक्स वाई जेड आर इन एपी. एक्स वाई जेड आर इन एपी का मतलब क्या होगा? इसका मतलब हमको ये प्रूव करना है कि 2y equals to x plus z. I repeat, if x, y, z are in AP, okay, it means we have to show that 2y is equal to x plus z. Okay, ये हम लोग को शो करना है, तो ध्यान देना यहाँ पे. अगर ये तीनों क्वांटिटीज इक्वल टू k है तो हम लोग बोल सकते हैं कि a to the power 1 by x is also k, b to the power 1 by y is also k, and c to the power 1 by z is also k. क्लियर? पावर जब राइट में शिफ्ट होता है तो पावर क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाता है. मतलब 1 by x है तो वो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा. यहाँ पे क्या होगा? b इक्वल टू k to the power y, और यहाँ पे c क्या हो जाएगा? k to the power z हो जाएगा. ठीक है? अब देखो मैंने a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू निकाल लिया, ऑल इन टर्म्स ऑफ k. देखो सब में बेस क्या है? देखो k. अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये कंडीशन को जो दिया हुआ ये कंडीशन नंबर 1, इसको और इसको यूज करके हम लोग प्रूव करेंगे दैट x y z are in AP. Now see, so now we know that b square equals to AC, so put the value of b which is k to the power y, put the value of a which is k to the power x, put the value of c which is k to the power z. You know that पावर का होल पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई. तो ये हो जाएगा k to the power 2y. जब बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा.
ओके, जब दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर को इक्वलाइज कर देना। अगर बेसेस सेम है दोनों तरफ तो पावर इक्वल हो जाएगा। इफ 2y is x plus y, I'm sorry, this is z. If 2y is x plus z, if 2y is equals to x plus z, can I say that x, y, z are in EP? Therefore, is this clear everyone? I repeat, मैंने क्या किया, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 को यूज करके मैंने ये प्रूव किया कि एक्स वाई जेड एपी में। आई थिंक ये तो क्लियर है सबका कि एक्स वाई जेड अगर एपी में है इसका मतलब y माइनस एक्स और z माइनस वाई सेम होगा, दैट इज 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड प्रूव करना। तो ये दोनों कंडीशन को कैसे यूज किया मैंने, अगर ये तीनों क्वांटिटीज इक्वल होगा तो इक्वल टू एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, लेट इट बी के, इसको के से इक्वलाइज करो, इसको भी के से, इसको भी के से, तो यहाँ से a हो जाएगा k टू द पावर x, b हो जाएगा k टू द पावर y, c हो जाएगा k टू द पावर z। एबीसी अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एसी, यहाँ पे बी का वैल्यू, ए का वैल्यू और सी का वैल्यू पुट कर देना, एंड देन वी गॉट दिस पार्ट। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। नाउ लास्ट सम इज नंबर 40 इस एक्सरसाइज पे। After this completing this sum, everyone try number 14. So everyone, have you done number 14 or you have doubt? Done, very good. और कोई करता है? Any other student? Okay, I'm explaining number 14.
Now see question number 14, everyone. Then one geometric mean denoted with G, two arithmetic means denoted with P and Q inserted between two given numbers. So let A and B be the two given numbers. Okay, अब यहां लिखा हुआ है A और B के बीच का ज्योमेट्रिक मीन को क्या चीज से डिनोट किया जा रहा है? G से डिनोट किया जा रहा है. So can I say that G square equals to AB? Everyone please try to understand, okay, try to see what I'm doing. Listen here, condition number 1, capital G is the geometric mean between the two numbers, given numbers. So can I say that if capital G is the geometric mean between the two given numbers, can I say that G square equal to AB? Next, A और B के बीच का जो अरिथमेटिक मीन है वो क्या है? P and Q है. A और B के बीच का अरिथमेटिक मीन क्या है? P है और Q है. अगर P और Q, लिसन हियर, A और B के बीच का अगर अरिथमेटिक मीन P and Q है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि A, P, Q, B are in AP? Yes, can I say that A, P, Q, B these are in AP? So as a result, can I say that P minus A is equals to Q minus P is equals to B minus Q? ध्यान से नोट करना. A, अगर मान लो A और B दो गिवन नंबर्स है, इसके बीच का ज्योमेट्रिक मीन G है, तो G स्क्वायर इक्वल टू AB, खत्म हो गया वो एक कंडीशन. A और B के बीच का दो अरिथमेटिक मीन P और Q है, तो P और Q अगर अरिथमेटिक मीन है, इसका मतलब ये पूरा क्या होना चाहिए? AP में होना चाहिए. तो अगर ये AP में है, इसका मतलब P माइनस A का वैल्यू Q माइनस P का वैल्यू विच इज कॉमन डिफरेंस इज सेम एज B माइनस Q का वैल्यू. अब हमको प्रूव क्या करना है? देखो एक बार हम लोग को प्रूव क्या करना है. We have to prove that G square equals to 2P minus Q into 2Q minus P. ये हम लोग को प्रूव करना है. नाउ एक बार ध्यान से देखो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 एंड द प्रूफ पार्ट. देखो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और प्रूफ पार्ट को देख के बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि कंडीशन नंबर 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो प्रूफ पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रहा है कि नहीं मैच? देखो एक, इसका मतलब मुझे राइट हैंड साइड में जो A और B जो दिख रहे हैं, A और B के जगह पे, A इंटू B के जगह पे मुझे A का वैल्यू और B का वैल्यू निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ P एंड Q. आई रिपीट, I have to calculate the value of A and the value of B in terms of P and Q. So what I'll be doing for this? Now equalize this with this. Equalize first term with the middle term, left hand side with the middle part. So what is the value of A? The value of A is 2P minus Q. And equalize this middle part with the right hand side. So what is the value of B? The value of B is 2Q minus P. Now can you tell me what I have to do now after this? बताओ तो A और B मिल गया तो क्या करेंगे? बस इक्वेशन 1 में A और B की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये बन जाए. ठीक है. So we have G square equals to A, that is 2P minus Q, into B, that is 2Q minus P. This is what we have to prove. I hope it is clear, everyone. क्लियर है सबका? अब एक्चुअली इसमें और भी देखो, एक्चुअली ये एक्सरसाइज में बहुत सारा डाउट्स आता, तो जो डाउट्स आएगा मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ. एक बार इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करना. 8 भी काफी इंपॉर्टेंट सम है. 8 के बाद नंबर 12, 8 and 12, these are the two sums, okay, जिसमें डाउट आ सकते हैं. Okay, so 8 and 12. Everyone try question number 8 first and then number 12.
Is this clear after copying this sum? Number 8 and then number 12. तो ये डाउट में आता है, लेट मी सी अभी किस किस का इसका डाउट आता है, ठीक है, एकदम दिमाग लगाओ, एकदम देखते कौन कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करोगे तभी होगा, आगे बढ़ो हो जाएगा। देखो अगर तुम एक जगह अटक गया मतलब रुका रहेगा, कैलकुलेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जस्ट कीप ऑन ट्राइंग, यू विल गेट द आंसर। कोई है जिसका आंसर है ना? हो गया? और कोई? वेरी गुड, दिस इज गुड इंडिकेशन, इफ यू हैव डन दिस सम इट्स गुड। बट ऐसा नहीं है कि बहुत लोग, ऐसा है कि हो सकता है 1-2 बार 3 बार ट्राई करने में आ जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ जिन लोग से एकदम ही नहीं हो रहा है, मतलब स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। बट डोंट गेट डिमोटिवेटेड, ओके, दिस इज द प्रोसेस, ओके। बहुत लोग एक बार में हो जाता है, बहुत लोग का तुम हो सकता है जिससे नहीं हुआ अभी वो ये दूसरा सम दे तो उसे फर्स्ट बार में हो जाएगा। So don't think that way, okay? Just keep on trying, and if you are trying, that's good. You will improve, okay? So make sure. Now let's do sum number 8 now. जिसका भी डाउट है नंबर 8 में, नंबर 8 करते, और जिसका हो गया नंबर 8 12 ट्राई करते। See, AP का सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म्स, तो कौन से AP? उस AP का नाम लोगों को फर्स्ट टर्म पता है और नाम लोगों को कॉमन डिफरेंस पता है। So let A and D be the first term and the common difference of an AP. उस AP का सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस डी। इसका सेकेंड टर्म, इसका थर्ड टर्म एंड इसका सिक्स्थ टर्म, इसको अगर हम कंसेक्यूटिव टर्म्स बना दे तो वो जीपी हो जाएगा। वेरी सिंपल, लाइक सपोज मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये क्या बताओ तो एपी है। लेकिन अगर मान लो मैं सपोज इसका मैं फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, सपोज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म को ले ले, इस एपी का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म को कंसेक्यूटिव टर्म्स बना दे तो किस सीरीज में फॉर्म हो गया बताओ तो? जीपी हुआ कि नहीं? चेक कर लो, ये एपी में है, अग्री? यस। ना ये जीपी में, बट ये जीपी का, इस एपी का कौन कौन सा टर्म है? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। एग्जैक्टली सेम वे एपी का सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और सिक्स्थ टर्म को अगर हम कंसेक्यूटिव टर्म्स बना दे तो क्या है वो? जीपी में। देखो लिखा हुआ, it's written that second term comma third term and sixth terms are in GP.
If they are in GP, can I say that T3 by T2, this by this, is equal to T6 by T3? What is T3? A plus 2D. T2 is A plus D. A plus 5D. Cross multiply. Let us simplify this. So after simplification, we are getting a square gets cancelled. We are getting 4d square plus 4ad equals to 6ad plus 5d square. So we have how much? Minus 2ad equals to 2d equals to d square. चेक कर लो, ठीक है. Minus 2ad equals to how much? D square. So what is d? D equals to minus 2. Mark it as equation number 1. समझ में आया? तो dd कैंसिल हो गया तो d इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस 2. इन नंबर को निकालना क्या है? निकालना है जीपी का कॉमन रेशियो. ना कॉमन रेशियो क्या होगा बताओ तो? अगर मान लो ये 3 नंबर जीपी में है तो कॉमन रेशियो क्या होगा? either T3 by T2 is a common ratio or T6 by T3 is a common ratio. कोई भी, लेकिन वैल्यू क्या होगी? लेट्स फाइंड आउट. T3 मतलब a plus 2d and T2 मतलब a plus d. Put the value of d equals to minus 2a. Okay, d का वैल्यू minus 2a पुट करो तो 2 into minus 2a will become minus 4a. So you'll get in the numerator minus 3a, in the denominator minus a. तो क्या आ जाएगा? 3. 3 is a common ratio. You can either use this or you can use T3 by T2. This is the common ratio. Orbital first. And then we have number 12. Yes, anyone who has done number 12, किसी से हुआ number 12? Yes. Try. Erase करो मैं ये. So that's why I was saying in the first class only that without E, just see how important is exercise E. ठीक है, तो F करना बेकार है. अब पहले मैं नंबर 12 बताया था, फिर मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे. नेक्स्ट डे हम लोग पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करेंगे. पैरेलली हम क्या करेंगे? डेली 10 सम्स का मैं छोटा सा वीडियो बना के मैं भेजूंगा तुम लोग. तो हम लोग नेक्स्ट डे से पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट से करेंगे क्योंकि माटीगरा का भी आ रहा है.
और एक्सरसाइज एफ के लिए डेली बिकॉज तुम लोग का एग्जाम बहुत दूर है, लाइक सपोज मैंने पहला 10 सम्स का ब्रीफ कर दिया, बता दी, और तुम लोग होमवर्क कर लेना बाकी, ऐसे करके हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट हो जाएगा, 3 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा पूरा एक्सरसाइज, और पैरेलली पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स भी हो जाएगा। तो आज हम लोग एक्सरसाइज भी करके इस तरह का लाइव क्लासेस में, और हम लोग एपीजीपी नहीं करेंगे, सिर्फ डाउट्स। और हम लोग एफ के लिए मैं सारा 10 का सम्स का मैं वीडियोस बना के दे दूंगा तुम लोग, और हो सकता है वो वीडियो को तुम लोग को मेरा जो ऐप है ऐप से देखना पड़ेगा, वो वीडियो बनाऊंगा और ऐप से तुम लोग को देखना है। So everyone must install app now. Now, क्वेश्चन नंबर 12 देखना एक बार, जिससे हो पा रहा है यू कंटिन्यू, तुम मत बोर्ड पे देखो, जिससे नहीं हो पा रहा है वो एक बार देखो। इन अ सेट ऑफ 4 numbers, the first 3 are in GP and the last 3 are in AP with difference 6. If the first and fourth numbers are same, first number and fourth number सेम है। ध्यान से देखना एक बार, कितना इंटरेस्टिंग समय है। फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों सेम नंबर है, और क्या लिखा हुआ देखना एक बार, लास्ट थ्री numbers are in AP with common difference what? 6. If 6 is the common difference, can I say that ये वाला टर्म हो जाएगा a minus d, sorry a minus 6, I'm sorry, कॉमन डिफरेंस अगर 6 है तो यहाँ पे हम लोग -6 कर देते हैं, और यहाँ पे a minus 12। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? देखो इसमें +6 किया तो क्या है आंसर, a minus 6, a minus 6 में 6 ऐड किया तो क्या है, a आ गया, ठीक है। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द सेट ऑफ फोर नंबर्स द फर्स्ट 3 आर इन जीपी, द फर्स्ट 3 आर इन जीपी, मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी बी आर। तो अगर फर्स्ट नंबर ए है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, ए आर, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। Clear? This is also the is one way. And the second way is you can represent this way also. A और बीच का जो दो नंबर है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a minus 12, a minus 6. तो a minus 12, बिकॉज अगर a minus 12 ये होगा तभी तो कॉमन डिफरेंस क्योंकि 6 है, तो a minus 12 plus 6 कितना हो जाएगा, a minus 6, a minus 6 plus 6 कितना हो जाएगा, a, क्योंकि कॉमन डिफरेंस लिखा हुआ है 6 है, देखो लास्ट 3 टर्म्स का, क्योंकि लास्ट 3 टर्म्स AP में और उसका कॉमन डिफरेंस 6। समझ में आया? दोनों ही वेज करेक्ट है। अगर तुम ये वेज जा रहे हो तो ये भी वे करेक्ट है, ये भी वे करेक्ट है। इस वजह से कैसे करेंगे, इस वजह से पहला 3 नंबर्स जीपी में, तो कैन आई से दैट a minus 12 by a is equal to a minus 6 by a minus 12. Just solve this by cross multiplication. You'll get the value of a. Did you get my point, everyone? क्योंकि पहला 3 terms GP में है, तो this by this is equal to this by this. Solve कर लो a का value. And this way we have almost we have completed everything. Maximum एक सम डाउट आ सकता है, and that is number 10. But I'll ask you all to try this sum first. अगर डाउट होगा तो बता देंगे, else हो गया तो बहुत बढ़िया।